student of class 10. Welcome in economics class. Today we will start a new chapter, that is chapter number 10, commercial bank, right? What is commercial bank? What are its functions, right? So we will understand about all these things. So let's start that. First understand that what is commercial bank. Commercial bank is a financial institution which accepts deposits from the public and give loans for the purpose of consumption and investment. So basically these commercial banks are the financial institution. देखो there are two types of bank, commercial bank and central bank. So commercial bank में सारे banks आते हैं and the central bank is your Reserve Bank of India, right? So basically this commercial bank, it is a financial institution which accepts deposit. Okay, जो क्या आती है पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है. जैसे हम लोग सिंपल we just deposit our money, save our money in the bank, and then the bank provides the loans to the other persons, right? ये क्या करती है, works as a middleman. जैसे मान लो किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, किसी के पास नहीं है, and they need money, right? So in that they work as a middleman. उन्होंने क्या किया, ज़्यादा जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं और जो सोच रहे हैं कहीं पे लगाएं, so they are taking the money from them and they are given to the needy or required person, right? So this is the work of bank. I tell you with example. For example, bank. ये क्या है? आपकी बैंक है. कोई भी बैंक हो सकती है, PNB, SBI, any bank, right? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? Now the household means we the people, right? Household. हम लोग क्या करते हैं? We save our money in the bank. हम money क्या करते हैं? सेव करते हैं. कोई भी परसेंट है, 2%, 4%, 5% हमें मिलता है उस पर इंटरेस्ट पर एनम, राइट? सो वी सेव आवर मनी इन द बैंक एंड दिस बैंक्स गिव मनी टू द बोरोवर्स को क्या करती है, उनको ये मनी दे देती है, राइट? लेंड कर देती है ऑन, क्योंकि जो अब हम लोन लेते हैं देन वी हैव टू पे हाई इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, 12% रख लेते हैं, राइट? सो अब क्या हुआ, नाउ वी आर सेविंग आवर मनी इन द बैंक एंड दिस बैंक इज प्रोवाइडिंग द मनी, लेंडिंग द मनी टू द बोरोवर्स. अब इनके चीज की जो अमाउंट है 4 और 12% के बीच का जो डिफरेंस है, राइट, दैट इज योर 8%. नाउ दिस 8% इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक. ये क्या हो जाएगी? बैंक की प्रॉफिट हो जाएगी. क्लियर? सो यही काम करती है बैंक, राइट? ओके, लेंडिंग मनी, मतलब ये अमाउंट होता है और ये बोरोइंग, ठीक है? तो क्या हो रही है, यहाँ से बैंक बोरो कर रही है एंड देन द बैंक इज लेंडिंग द मनी टू द बोरोवर्स, ठीक है? सो दिस इज द वर्क ऑफ दिस बैंक, राइट? सो बैंक इज क्लियर. नाउ देयर आर सम फंक्शंस ऑफ बैंक. First, primary function, which is the basic function of any bank, agency function and general utility function. So let's understand that what is primary function. This is the basic function of the bank, right? The first function of primary function of the bank is accepting deposit. In this, the bank accepts the deposit from the public, and the second one is advancing loan. In the second function, the bank advance the loan or give the loans to the public, right? Accepting deposit, there are three types of deposit, that is demand deposit, saving deposit and fixed deposit, right? Now here in this demand deposit, it is also known as current deposit, right? इसको current deposit भी कहते हैं because these types of accounts are opened by the businessman. ये कौन खोलता है? businessman इनको खोलते हैं, right? तो इसमें क्या होता है कि रेगुलर ट्रांजेक्शन इज गोइंग ऑन. इसमें आज ही 10 बार में निकाल लेंगे और डिपॉजिट करेंगे. सो रेगुलर ट्रांजेक्शन इज गोइंग इन दीज टाइप्स ऑफ अकाउंट. सो दैट्स व्हाई बैंक डज नॉट गिव एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस डिपॉजिट. इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है. नो इंटरेस्ट ऑन डिमांड डिपॉजिट्स, राइट? Saving deposit. Now this saving deposit, the general accounts which all of us must be having, right? हम सबके पास होते हैं इस तरह के अकाउंट. सेविंग, we save our money in this accounts, right? तो सेविंग डिपॉजिट, इसमें क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक, राइट? और इसमें क्या, एक फिक्स अमाउंट, एक लिमिटेशंस होती है दैट दिस मच अमाउंट यू कैन सेव और समथिंग. सो सम लिमिटेशंस आर देयर इन दिस एंड यू गेट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस टाइप्स ऑफ accounts, right? Now the last one is fixed deposit.
अकाउंट। नाउ दिस फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी सुना होगा तुमने कि इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं दैट इज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय के लिए। इसमें क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ अमाउंट इसमें डिपॉजिट करते रहते हो एट अ पर्टिकुलर 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, राइट। उसके बीच में आप नहीं निकाल सकते। इफ़ यू आर टेकिंग आउट दैट देन यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट। उसमें फिर आपको अच्छा इंटरेस्ट, और जो आपने मेच्योरिटी पीरियड में आपने सोचा था कि दिस मच अमाउंट यू विल रिसीव, यू विल नॉट गेट दैट, राइट। तो ये क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट में एक सर्टेन पीरियड आपने 5 साल के लिए अपना एफडी बना लिया। सो फॉर 5 years यू विल डिपॉजिट योर मनी मंथली, एनुअली, इट्स अप टू यू, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू गेट द इंटरेस्ट। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट इज वेरी हाई, वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट। सो और उसके आफ्टर पर्टिकुलर जब मैच्योर हो जाता है देन वी कैन टेक आउट दैट मनी, ओके, एंड इन दैट कंडीशन वी गेट द बेनिफिट। इसी में आपका एक आरडी भी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट, राइट। आरडी होता है, इट इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर मंथ में रिकरिंग, हर मंथ में यू जस्ट सर्टेन अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट जो है यू डिपॉजिट इन दिस अकाउंट, एक डिपॉजिट करते हैं एंड यू गेट द बेनिफिट, राइट। सो दैट इज आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, क्लियर। सो दिस इज योर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। इसमें क्या है, यहाँ एक्सेप्ट डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द पब्लिक। योर डिमांड डिपॉजिट, saving deposit and FD. In FD, the rate of interest is higher than your current and saving deposit accounts, right? Advancing loans. Now, in this functions, the bank advance or gives loans to the public, right? So, basically, in this cash credit, the first one is cash credit. So, under this, the borrower is allowed to withdraw up to a certain amount on a given security. So, on some security, the borrower is allowed to withdraw इतना amount वो निकाल सकता है, right? With which compromises mainly stock of goods and bill receivable from the others, but the interest is charged on the amount actually withdrawn. वो निकाल सकता है जो भी उसने as a security दी है, but उसके जो इंटरेस्ट है दैट विल बी चार्ज ऑन द अमाउंट जितना उसने विड्रॉ किया है। जितना भी उसने विड्रॉ किया है दैट विल बी चार्ज, इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन दैट। सो दैट इज योर कैश क्रेडिट। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म लोन्स। नाउ द लोन्स ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ, इन दिस द बैंक सैंक्शन a fixed amount of loan to the borrower, to the particular person, and in this what they do, basically they the bank amount, the amount they credit, the bank credits this amount in this borrower's accounts. उसमें क्या कर देता है, डेप्टर्स के अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देता है, एंड बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन द होल अमाउंट फ्रॉम द डेट इट वॉज सैंक्शन। और बैंक उस दिन से इंटरेस्ट चार्ज करने लगता है जिस दिन से वो अमाउंट सैंक्शन किया गया है एज अ लोन, राइट। फॉर एग्जाम्पल आज अगर आज ही लोन सैंक्शन हो गया, येस नॉट इज फाइन, सो आज से ही उसका जो इंटरेस्ट है दैट विल बी चार्ज बाय द बैंक, राइट। नेक्स्ट इज योर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट मीन्स एक्स्ट्रा, राइट। जैसे क्या होता है बैंक्स में चेक बाउंस कैसे कंडीशंस में होते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इन माई अकाउंट देर इज फॉर एग्जाम्पल 2000 मनी इज देयर, राइट, ओके, लेकिन मैंने किसी को चेक इशू कर दिया दैट इज ऑफ 3000, 1000 तो है ही नहीं, 2000, तो वो चेक क्या होगा, बाउंस हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में दैट चेक विल बी बाउंस, बिकॉज मेरे पास मेरे अकाउंट में सिर्फ 2000 ही हैं, राइट, 3000 है ही नहीं, तो कहाँ से आ रहा है। सो दैट इन दैट कंडीशन में दैट चेक विल बी बाउंस। नाउ अब क्या है, अब जब आपके अकाउंट का जब जो अकाउंट होल्डर है उसका चेक जितना बाउंस होता है सो उसकी प्रेस्टीज पे इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो बैंक भी क्वेश्चन करने लगता है व्हाई सो, राइट। सो दीज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आर गिवन टू द बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन के साथ ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं, राइट। सो इन दैट कंडीशन this overdraft facility is given to the businessman and interest is charged on that. जैसे उसने मान लो 3000 ले लिया, now the interest will be charged on that 1000 also. 2000 पे तो होगा ही, but that interest will be charged on this 1000 also. इस 1000 पे भी उसका interest charge होगा, right? Next is that extra, उसी को कहते हैं extra. Next is वो क्या करती है, बैंक अपनी तरफ से दे देती है, ठीक है, ताकि वो ऐसा कंडीशन ना क्रिएट हो, ओवरड्राफ्ट, एंड दिस इज ओनली फॉर द बिजनेसमैन ओनली, सिर्फ बिजनेसमैन के लिए ही होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक्सचेंज। नाउ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक्सचेंज मीन्स इन दिस कंडीशन व्हाट हैपन्स, बेसिकली
जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, उसने किसी से पैसे लिए, राइट, 1 लाख रुपीज़, उसने कहा कि आफ्टर 6 मंथ यू विल, उसने एक बिल काट के दे दिया कि यू कम विद दिस बिल, आफ्टर 6 मंथ आई विल पे यू बैक द मनी, दैट मनी विल बी रिकवर टू यू, तुम्हें क्या होंगे, वो 1 लाख रुपीज़ पे कर दिए जाएंगे, ठीक है। बट सडनली, ठीक है, मान लो जैसे ये एक बिजनेसमैन है, इसने क्या किया, बी से लिया एंड बी शुड एक बिल दे दिया, राइट। अब क्या हुआ, 6 महीने के बाद बोला, लेकिन बी को क्या अचानक विदिन 1 मंथ उसको पैसे की जरूरत है 1 लाख रुपीज़ की। नाउ दिस बी विल गो टू द बैंक, ये किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा, एंड दिस बी विल शो दैट बिल, वो बिल किसको दिखा देगा, वो बैंक को दिखाएगा। नाउ द बैंक विल, ऑन दैट बिल, ये बिल जो होती है वो ऑथोराइज होती है, ऑन दैट बिल द बैंक विल सैंक्शन द लोन, इसको क्या करेगा, बी को वो लोन दे देगा, एंड आफ्टर 6 मंथ द बैंक विल रिकवर दैट मनी फ्रॉम द ए, राइट। सो इन दिस वे दिस इज द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन वो क्या करेगा, बैंक जब बी को देगा, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख देना है उसको, राइट, सो उसका कुछ इंटरेस्ट, राइट, कुछ 1% 2% जो भी उनका है अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स, उसको काट के, ओके, 1000 10,000 जो भी है काट के, देन उसको बाकी पैसे देगा, एग्जैक्ट 1 लाख नहीं देगा, उसमें से कुछ डिडक्ट करके देन दैट अमाउंट विल बी गिवन टू बी, राइट। So this is the bill of exchange. So I hope that you have understood this much, okay, meaning of bank and today we have discussed about the primary function of bank. This is enough for today. Thank you so much.